Okay, so mechanism under GST. Okay, guys, बात मत करो प्लीज, देखो आसम बात मत करो. Okay, so there is a two mechanism of GST. ऐसा पहले बात कर लो आप लोग, then I'll start. Please. हो जाए तो बताओ किसने स्टार्ट करना. Okay, so normally GST is an indirect tax. ये बात हम लोग शुरू से स्टार्ट किए थे कि GST is nothing but it's an indirect tax. And why GST is called indirect tax? That point also we have discussed that the incidence of tax and impact of tax fall on different person. Okay. So basically GST is paid by whom? To department is a supplier. And supplier is not paying the GST from his or her own pocket, obviously. Supplier collect करके हम लोग को pay करें. Okay. So that is a forward charge mechanism. Now the question is arising that for the government, which is important? I mean, यहाँ पे दो चीजें हैं. एक जन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है एंड दूसरा जिनका जेब से पैसे जा रहे हैं. So a person who is paying the amount out of his or her own pocket, that is called impact or burden or liability, whatever. And the person who is responsible to deposit the tax, that is also another liability or burden. So now the question is arising, sir, for the government, which part is important? कौन टैक्स पे कर रहा है ये important है कि टैक्स important है? You are in the place of government, so for you guys, which part will be most important? कि कौन दे रहा है ये कि only tax? So there are lots of situations. Okay, I'm telling you some situation so you can understand that कि जहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना थोड़ा गवर्नमेंट को मुश्किल है. इनसे मुश्किल है ऑब्वियसली जो मैकेनिज्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो. So guys, 99% you can say that there's a 99% supply in this market which will come under this mechanism, forward charge mechanism. What is forward charge mechanism? We all know okay, we are not going to pay the GST directly to the government. Definitely we are going to pay to the supplier and supplier will collect the GST and pay to the government, and that is called forward charge mechanism. So normally there's a two part are there. So in GST, one is a supplier and second one is what is recipient. Okay, so GST government को कौन पे करेगा? Supplier की recipient is supplier. So GST paid to the government. So GST has been paid by the government by the supplier, and the burden of the GST fall on whom? Is recipient or consumer, whatever. So burden of GST. So I think these two things is clear to all of us, and every day knowingly unknowingly we are doing it. हम लोग डेली लाइफ में तो करते ही हैं. कोई भी सामान जो बिल लेके खरीदते हैं तो उसके साथ तो पहले सामान का दाम नहीं देते हैं. We are paying along with the GST also. So the burden is coming on our side, but we are not paying directly to the government. Rather, we are paying to the supplier, and supplier will collect the amount and deposit to the department. That is called forward charge mechanism. Okay. So right now I am going to give you some examples. So see guys, what is reverse charge? इससे जानने से पहले, before knowing that what is reverse charge, you should understand that why government has introduced this concept. That is not a new for the, that is quite new for the law, because reverse charge mechanism RCM has been introduced in the year 2012, but that time GST was not there. That was in service tax. So in service tax time, from the service tax era, this concept has introduced. Guys, in today's world and in today's India, we are paying tax. हम लोग tax देते किसके ऊपर देते? Goods के ऊपर भी as well as service के ऊपर भी. So can I say जो कल service tax था, आज वही GST में subsume हुआ है? Absolutely, absolutely yes. Before 2017, if you are going to recharge your DTH or mobile phone, that time service tax 15% is there. But right now, service tax has been substituted by the GST. Right? So this is not a new concept under GST. That is actually derived from the service tax. Now you should understand why the government has introduced this mechanism. Sir, our life was good in this. So what need to introduce a new concept? क्या दरकार था नया concept reverse charge को introduce करना? क्वेरी समझ में आ रहा है? हम लोग reverse charge को क्या है वो जानने से पहले हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने concept को introduce किया तो क्यों?
और आज भी ये चल रहा है। और सबसे अच्छा बात ये है कि एवरी ईयर और रादर एवरी 6 month intervals there is an amendment under RC. Why? Because government is getting benefit out of it. तो आपको ये समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों किया है, ऑल दैट। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू आई हैव सीन दैट फ्रॉम द सर्विस टैक्स एरा, कि इंटरव्यू इफ यू आर राइटिंग दैट के इन योर की स्किल्स यू नो टैक्स इंडिरेक्ट टैक्स स्पेशली, दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिवर्स चार्ज, व्हाट इज आरसीएम, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कि आरसीएम क्या है। तो आरसीएम क्या है उससे पहले यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि आरसीएम गवर्नमेंट क्यों लेती है। Okay, so today's class agenda is clear. First, we'll get to know that why government has introduced this concept called RCM. अच्छा, reverse means उल्टा, ये तो सबको पता है ना। Forward तो सीधा सीधा जो जा रहा है, reverse का मतलब ये होता है कि सिचुएशन उल्टा है। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, ये भी उल्टा होने वाला है। But क्वेश्चन वो नहीं है, वो तो समझ में आ गया सिचुएशन is going to be reversed. But question is why? That we need to understand. Why government has introduced the concept called reverse charge mechanism. Okay, now I am just going to give you some example. आपका टास्क एक ही रहेगा, you have to classify कि who is the supplier and who is the recipient. I am giving some situation. कि ये एक situation है, you have to identify two person who will be the supplier and who will be the recipient. Then you will able to automatically understand कि why government has introduced this concept called RC. So आगे बढ़े। तो all my online students, मेरा आवाज clearly audible है आप लोग तक? Am I audible to all of you clearly? You guys have understood what is our agenda? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Now, guys, did you ever heard about the concept called sponsorship? Sir, we all know that without sponsor, nothing can be happened. Any kind of event like Filmfare Awards, okay, any cricket, football tournament, there must be a sponsor. And nowadays, whenever the program has been started, before taking the name of the event, you should pronunciation the name of the sponsor. Okay, Vivo presents IPL 20, but this year not Vivo was there. Dream 11 was there for the IPL sponsor because of the Indo-China some dispute and all that. I think this was Dream 11 is ना? Contract was 3 साल का, 3 years का contract. Okay, so let's take the example of the IPL. So IPL is a grand event in the cricket history nowadays. The budget is much more than the World Cup. If you go through the entire grandeur of the IPL, so you get to know that the budget of the entire IPL is totally exceed the World Cup budget. आप लोग 2019 का वर्ल्ड कप अगर देखे होंगे, फाइनल सेरेमनी आपको याद हो कि जब ट्रॉफी दिया जाता है कितना सेलिब्रेट हुआ, बट आईपीएल का जब फाइनल सेरेमनी होता है तो प्राइस का लिस्ट खत्म ही नहीं होता है। इस बार तो फिर भी कम प्राइस मिला, बट मोस्ट ऑफ द ईयर क्या होता है, एफबीबी स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच, कार्बन कैच ऑफ द मैच, ओके, इवन फैन इज आल्सो गेटिंग द अवार्ड, कौन सा फैन अच्छा रिएक्ट किया, तो पैसा ही पैसा, ये पैसा कौन देता है, who is going to pay this amount? Obviously sponsor, FB at yes bank maximum, this girl आधा पैसा उसी से लेके गया सबसे ज्यादा 6 हिट करने के लिए, ठीक है। तो there are lots of पैसा, मतलब कुछ भी करो पैसा तो मिलेगा आपको, ठीक है, with dividend and all that, सर ये पैसा आते कहाँ से? Obviously sponsor is going to pay the entire thing and all that, so there must be a title sponsor and the other sponsor also. So let's take the example of the IPL, because we more or less we all know what is IPL, who is the title sponsor and all that. So I think in this year 2020, IPL obviously we have seen that, and Dream 11 is a title sponsor. Okay, so there is a two person are there. Number one is a Dream 11, and number two is the IPL. Acha, I think we all know that IPL is a franchise tournament. IPL is not representing any nation or any pride or something like that. It's totally purpose of entertainment and totally franchise-based tournament. Okay, so you are not representing your country or something like that. You are playing for some franchise. I think we all know this kind of thing. Yes or no? So guys, so IPL is the event where the international player as well as national player both are participating. सब लोग आते हैं. Okay, so guys, I'm giving you two options: Dream 11 and IPL. So who is the sponsor? Dream 11 is 11 is the sponsor and IPL is the event. Clear है? अब क्वेश्चन पूछे. It's a case of sponsorship service, and if you go through the agreement between Dream 11 and IPL, the amount is not small. It's quite large, almost more than 300 crore if I'm not wrong. Vivo के साथ तो उससे भी ज़्यादा बड़ा contract हुआ था because Vivo का title बड़ा लंबा था.
IPL तो start हुआ था, it started with Pepsi, I guess. That first time was the Pepsi IPL, then comes the DLF IPL, and then it shifted to Vivo. After DLF, it comes Vivo. Okay, the title sponsor every 3 years is getting changed. Okay, so now it's Dream 11 IPL. Okay, so guys, I have a question for you guys. Okay, if I consider this is the event management service, obviously this is an event management service, sponsorship service. It is a case of sponsorship, title sponsor of the IPL. So now, in the context of sponsorship, who is the supplier and who is the recipient? Guess करो कि कौन सप्लायर है, कौन रिसिपिएंट है. अच्छा, विकास तुम इन लोग को थोड़ा सा जवाब सकने का मौका दो. प्लीज ये लोग नहीं चलेगा. बोलो मैडम, who is the supplier? Sir, I think the supplier and अच्छा, we have two options. दो कॉम्बिनेशन, दो ही ऑप्शन आएगा. Option number 1, online student, please participate. This is a question for you guys also. Option 1, sir. IPL is the supplier and Dream 11 is the recipient. Option number 2, Dream 11 is the supplier, IPL is the recipient. Sir, option number 2. Okay, कितने लोग को लग रहा है कि Dream 11 is the supplier and IPL is the recipient? सारा शादी के लोग को लग रहा है. Okay, fine. अभिषेक, सिद्धार्थ, क्या लग रहा है तुम लोग को? क्या लग रहा है तुम्हें? सिंपल तो क्वेश्चन है सर. IPL देखते हो? कौन सा किसका नाम लिया था? प्लीज इसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज ऑनलाइन पे प्लीज म्यूट कर दो. हाँ जी, कौन कौन स्पॉन्सर कौन था इस बार? वो नहीं था, Dream 11 था. तो स्पॉन्सर समझता हो ना, जो पूरा पैसा इन्वेस्ट करता है. आप लोग पाड़ा के क्रिकेट के या फुटबॉल खेला देखो, बहुत सारा बैनर हम लोग लेके आते हैं. अगर कभी किए हो तो जिसका बैनर आता है वो उल्टा पैसा भी देता है, बिकॉज ऑफ द पब्लिसिटी. क्यों? बिकॉज आपको पब्लिसिटी होगा. साहब को समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या क्लास बोलते हैं जीएसटी की डीटी? क्या क्लास है? जीएसटी का क्या पढ़ रहे हैं? सप्लाई बता रहे हैं अब कौन होगा, कौन क्या होगा? सर. आईपीएल सप्लाई आईपीएल सप्लायर है, विकास बोला इसलिए. सर, स्पॉन्सर वो होता है जिसका पैसा इन्वेस्ट होता है. अच्छा, आपको सवाल है कि स्पॉन्सर बेवकूफ इतना पैसा क्यों देगा? सर, पब्लिसिटी. जितना बार इवेंट का नाम लिया जाएगा उससे पहले उसका नाम लिया जाएगा. वीवो इतना एडवर्टाइजमेंट करता है तो आईपीएल से पहले उसको नाम लिया था. अब जब देखना सीजन जब स्टार्ट होता है तो एंकर जो रहता है वो क्या नाम है उसका सबका, जो एक लड़के रहते हैं, फिर क्या नाम है, संजीव या कुछ ऐसा कुछ नाम होता है. एक वो क्या कोचर था, संदीप कोचर है कुछ ऐसा था. और इस बार संजय मांजरेकर इस बार था आईपीएल का होस्टिंग. भाई जो ग्राउंड में जो रहता है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? वेलकम टू आईपीएल नहीं बोलते, वेलकम टू ड्रीम 11. उसके बाद आईपीएल का नाम ले. फिल्मफेयर अवार्ड देखते हो ना, यू वाचिंग फिल्मफेयर अवार्ड. सो एवरी ईयर दिस इज जियो प्रेजेंट फिल्मफेयर नाइट 2020 समथिंग लाइक दैट. सो सबसे पहले स्पॉन्सर का नाम ले जाता है. जिससे स्पॉन्सर का एक ग्लोबल पब्लिसिटी मिलती है, बिकॉज़ आईपीएल हर एक देश में दिखाया जाता है. तो जहां जहां आईपीएल विल बी टेलीकास्ट है सब जगह को पता है ड्रीम 11 जाकर कोई चीज है. तो पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा-बड़ा इंडस्ट्री सब इन्वेस्ट और इवेंट इसी से चल जाता है. तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था सर. इफ आई कंसीडर स्पॉन्सरशिप सर्विस, तो कौन सर्विस प्रोवाइडर है, कौन रिसिपिएंट? दैट वाज द क्वेश्चन. आईपीएल एक ऑप्शन ये था कि ड्रीम 11 इज द सप्लायर, आईपीएल इज द रिसिपिएंट. ऑप्शन 2 ये था कि आईपीएल इज द सप्लायर, ड्रीम 11 इज द रिसिपिएंट. सो व्हिच इज योर ऑप्शन? कौन सा लग रहा है? मतलब आईपीएल इज अ सप्लायर एंड ड्रीम 11 इज द रिसिपिएंट. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी कुछ अनम्यूट करके हो या लिख के आप लोग भी आंसर फॉरवर्ड कर सकते हो. Who will be the supplier, who will be the recipient? Guys, we are not talking about IPL, we are talking about the sponsorship service. So always remember, in case of sponsorship service, अच्छा, recipient कौन होता है? जिससे कुछ मिलता है. तो आप जब कुछ रिसीव करते हो, that time you will be the recipient.
यस और नो? तो पैसा क्यों किसको देना पड़ता है? जो प्रोवाइड करते उसको देना पड़ता है, जो रिसीव कर रहे हैं उसको देना पड़ता है। वाह, मतलब आईसी आप लोग को पड़ा है, पैसा भी दे। वो है कल तो आया नहीं गैस ले लेना। वो है कल सर किलो पैसा तो होता है, तो हम ही प्रोवाइड कर, हम ही पैसा। वाह सर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो पे करेगा ऑब्वियसली पैसा तो उसी को देना पड़ेगा। आई मीन सॉरी, रिसीव तो वही करेगा। तो यहाँ पे पे कौन कर रहा है? आईपीएल पे करेगा, ड्रीम 11 पे। सो ड्रीम 11 इज द रिसिपिएंट एंड आईपीएल इज द सप्लायर। सर आईपीएल क्या सप्लाई कर रहा है? पब्लिसिटी। वही तो दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, पब्लिसिटी अलग होता है। पब्लिसिटी मींस ऑलवेज आप ही दिखोगे हर जगह। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जो रणवीर सिंह खान साहब का एड देते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, ये होता है एडवर्टाइजमेंट। इज एग्जांपल ऑफ पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के लिए ड्रीम 11 को करोड़ों खर्च करना पड़ा आईपीएल से इवेंट को सपोर्ट करने के लिए। ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, इंटरनेशनल क्राउड भी है, तो दे विल नो दैट ड्रीम 11 इज अ कंपनी। सो गाइस इट्स क्लियर। आप लोग पहले मुझे क्लियर करो, रिसिपिएंट सप्लायर समझ में आया आप लोग का? तो हु इज द रिसिपिएंट? ऑब्वियसली स्पॉन्सर। Always remember one thing, if you consider sponsorship service, so always sponsor will be the recipient, और वो जिसको स्पॉन्सर करेगा that event, that will be the supplier. यार स्पॉन्सर तो हम लोग को इवेंट को ही करते हैं ना, we are going to sponsor what, any kind of event. Event can be anything, event can be music show, event can be cricket, football, whatever. Clear sir? Which one Maya? Okay, so now sir, question is arising that we have classified. सर Yes. हेलो सर। सर क्यों ड्रीम 11 इज रिसिपिएंट हुआ और आईपीएल क्यों सप्लायर हुआ? फिर से एक बार बोलेंगे? मैडम ड्रीम 11 इज द पेयर, तो देना पड़ रहा है। तो ड्रीम 11 को आईपीएल से क्या मिल रहा है? पब्लिसिटी मिल रहा है। आईपीएल इज रिसीविंग द Yes, sir. मनी, नॉट द सर्विस। गाइस आईसीए से सर्विस कौन ले रहा है? हाँ, हम ले रहे हैं, हम लोग। हम लोग ले रहे हो, तो यू आर द हम रिसिपिएंट ऑफ सर्विस एंड आईसी इज द प्रोवाइडर। सो पैसा जो रिसीव करेगा तो उसी को देना पड़ेगा ना। सो हियर द स्पॉन्सर, विद द स्पॉन्सर ड्रीम 11. So Dream 11 is getting publicity. That's why Dream 11 is a recipient. Not only Dream 11, every event management, I mean, every event पे जो भी sponsor होगा, sponsor should be always the recipient. क्योंकि sponsor का तो मतलब काम ही तो यही था कि they should invest the money so that they will get the publicity. जियो फिल्म पे शाहरुख खान साहब हर बार उसी का नाम लेते हैं, या जो भी एंकर होते हैं पहले सबसे पहले जियो का नाम लेते हैं। ठीक है, वेलकम टू जियो फिल्म पे। तो जियो पब्लिसिटी की मतलब जियो का गार्डन भी होता है और मुकेश अंबानी जी का गार्डन में भी हर साल होता है। स्पॉन्सर भी वही करते हैं। एक टाइम ब्रिटानिया था, एक टाइम पे आपका पीसी ज्वेलर्स था, तो हर एक टाइम पे चेंज विद द स्पॉन्सर एंड ऑल दैट। सो गाइस स्पॉन्सर इज ऑलवेज गेटिंग द सर्विस फ्रॉम द इवेंट। डन? आगे बढ़े। So now guys, just tell me one thing, GST is paid by whom? Supplier. Normally GST is paid by whom? It's supplier. Bond by whom? It's a recipient. Right? So guys, GST तो कायदे से supplier को देना पड़ेगा। यहाँ पे supplier कौन है? IPL is a supplier. Everyone is agreeing with that कि IPL is a supplier, DRL is a recipient. So always remember कि in case of event management or any kind of sponsorship, so sponsor will be the recipient and event will be the supplier. Sir, event वो होता है जो उसको publicity देगा। Getting my point? अच्छा, प्रियंका मैम क्लियर हुआ आपको ये जो भी क्वेश्चन किए थे आपने? Yes, sir. Yes, sir. Now the question is arising, sir. If I consider forward charge mechanism, sir, if I consider forward charge mechanism, so the contract is not less out, it's a huge amount, more than 300 crore. So 300 crore into 18% is also a figure 7 crore. Okay, now tell me one thing, अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से जाए तो आईपीएल को जीएसटी देना चाहिए? यस और नो? सर आप ही लोग ने डिसाइड किया कि हु इज गोइंग टू पे द जीएसटी? सप्लायर, रिसिपिएंट के जेब से लेंगे। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस आईपीएल इज अ सप्लायर, इट्स डिसाइडेड हु इज अ सप्लायर, आईपीएल इज अ सप्लायर एंड हु इज द रिसिपिएंट? So now tell me one thing, if I apply the logic of forward charge mechanism, so GST तो IPL को देना चाहिए। But do you think that IPL is a going concern concept? Temporary. Every year, max to max 2.5 months. If I starting from the auction, so 3 months. 3 month IPL का total season रहेगा।
player auction, then fix the schedule feature and all that, pre-show and then match. So match तो 1.5 month तो चलते हैं more or less सारा मैचेस को कंप्लीट करने में, and बाकी और आधा महीना पूरा 2 months बाद आईपीएल खत्म। ये सब नो सर, इसके तो कोई जो दौरा ही नहीं है। फिल्म का इवेंट 1 घंटा का होता है, लास्ट मैच 7-7 घंटा। हम लोग तो टीवी पे 3 घंटा देखते हैं, बट शूट तो 3 घंटे में नहीं, उससे ज्यादा होता है। So that's why 4 से 5 या entire day 8 hours का जो शिफ्टिंग होता है बॉलीवुड, उतना ही होता है। तो सर कोई भी इवेंट इज नॉट अ परमानेंट। सो अगर आपने कभी भी कोई प्रोग्राम अरेंज किए हो पाड़ा में, ओके, लाइक सरस्वती पूजा आ रहा है, तो स्कूल कॉलेज में आप लोग को अगर याद है कि एवरी ईयर व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, व्हाटएवर, सो देयर मस्ट बी अ कमिटी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो कमिटी का कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई कैशियर होगा, विल टेक केयर ऑफ एवरी पार्ट। ये तो होता है। ये कमिटी कितना दिन तक एग्जिस्ट करता है? टिल द इवेंट। वंस द इवेंट विल बी फिनिश्ड, एक जनरल मीटिंग बुलाया जाता है, पूरा हिसाब किताब किया जाता है, कमिटी खत्म, सब अपना अपना। सर आमतौर पे यही होता है। तो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कमिटी, if you are going to ask the president what about the expenses, president will say that I am no more president. कैशियर बोलेगा हम अभी कैशियर है ही, तो मुझे पता नहीं क्या है। So in the year 2012, that time our honorable finance minister Dr. P. Chidambaram, उनको ये लगा कि हम लोग को टैक्स का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। आईपीएल का जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है? बीसीसीआई इज नॉट आईपीएल गवर्निंग बॉडी। आईपीएल खुद का गवर्निंग बॉडी होता है, बीसीसीआई कोई मेंबर उसको रिप्रेजेंट करे, उसका परमिशन लगता है। बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट द क्रिकेट, बट आईपीएल खुद का गवर्निंग बॉडी होता है। वन टाइम ललित मोदी वाज द चेयरमैन, then Srinivasan ji is the chairman. That is a BCCI president, is not a IPL president. So IPL is represented by someone else. Rajiv Shukla sir, once upon a time, Anurag Thakur sir is also there. So who is this? कौन है ये लोग? अगर वो मीम्स के बोलो कहाँ से आते हैं ये लोग? So they are all a ruling party players. Rajiv Shukla is the leader of Congress. Anurag Thakur is the leader of BJP. Rajya Sabha का leader. ये आपका hosting the IPL. ये तो घर का ही बात हो गया ना? कि पापा चाचा के उसको कंप्लेन कर रहा है, सबको पता है कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी अगर जीएसटी मांगने जाए, किससे मांगने जाए? अनुराग ठाकुर से मांगने जाएगा, कौन है अनुराग? ये तो उन्हीं का पार्टी का जो मेंबर है ना, तो कभी भी जीएसटी आएगा। अगर ये लोग डिले कर भी दे, क्या करेगा कौन? चांस ही नहीं है कोई चीज का। बट चिदम्बरम जी को लगा यार पैसे का लॉस हो रहा है, इसलिए मैं आपको तो पहले ही पूछा सुबह आके, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? Who is paying the tax? This is important. कि tax important है। तो tax अगर important है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्यों नहीं मिलेगा? आप जिनसे मांगने जा रहे हो वो आपके घर का होती है। इसलिए वो आईपीएल गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन कौन है? वही है। जियो का हेड कौन है? कोई अंबानी जी है। तो मांगने जाओ उनसे टैक्स, वो बोलेगा पूरा इंडिया में रहा है, टैक्स किस बात का? देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कलेक्शन ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट को परेशानी हुआ, आप लोग परेशानी फील कर पा रहे हो? और इस सब का अमाउंट भी इतना ज्यादा होता है ना, देयर इन्वेस्टेड इन अ लार्ज अमाउंट, उसका टैक्स भी फिगर से करोड़ ही होता है। गवर्नमेंट लालच भी छोड़ नहीं पाता है। सो गवर्नमेंट बोलता है सी वंस वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन, सो जैसे एक बात बताओ, ये कौन है? ये तो रिसिपिएंट है ना। ये आज आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है, कल जब कोई और टूर्नामेंट होगा तो उसको स्पॉन्सर करेगा। वीवो का जहां नाम आप लोग ले रहे थे, सो वीवो इज द स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल आल्सो, Vivo is the sponsor of the Pro Kabaddi League also, Badminton League also. And not only that, outside India also they are sponsoring lots of events. तो इन लोग के लिए इवेंट स्पॉन्सर करना आम बात है, क्योंकि इन लोग के लिए पब्लिसिटी मैटर करता है। फोन जितना दिखेगा उतना दिखेगा। एग्जिस्टिंग मार्केट में मोनोपोली करना चाहते हो तो हर एक का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। Vivo and Oppo, they are investing lots of money in advertising in compared to Realme and Xiaomi. Xiaomi Realme का मार्केटिंग अलग स्ट्रेटजी था, इन लोग का अलग स्ट्रेटजी था, बट जो भी है दे आर सक्सेसफुल इन देयर स्ट्रेटजी। आज मार्केट में इन लोग का स्ट्रेंथ है। इफ आई कंसीडर इंडियन मार्केट आल्सो, तो Vivo का एक परसेंटेज और मिला है, Vivo यूजर है इतना, तो Vivo का लॉस नहीं हुआ, जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। सब एक बात बताइए, इन लोग के लिए तो नॉर्मल बात है ना, बट गवर्नमेंट अगर इन लोग से टैक्स मांगने जाएगा तो वो तो सर संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि आपने खुद बोले हो कि if I consider indirect tax, the indirect tax is paid by whom? Supplier and borne by the recipient. सर यहाँ पे सप्लायर तो आईपीएल था, तो आईपीएल से तो गवर्नमेंट को टैक्स इन लोग से लेना चाहिए,
ये लोग क्यों पे करेगा? रूल के ही तो खिलाफ हो जा रहा है, हाँ या ना? So government is facing the problem of what? Collecting the GST. अभी जीएसटी बोलते हैं, टैक्स तो इनकम टैक्स भी होता है, बट इनकम टैक्स केस तो है ही नहीं। आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो गाइस ऑलवेज कंपेयर किया जाता है कि हु इज द बेटर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। सो सिंह साहब का नाम सबसे पहले आज भी लिया जाता है। कौन है सिंह साहब? अक्षय कुमार पाजी का बात नहीं कर रहा हूँ। so, या धर्म पाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स मनमोहन सिंह जी एज ए प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट नो लोग कितना पसंद है, बट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आज भी उनका नाम इंडिया का टॉप 10 लिस्ट में आएगा। अब भूल कर मेरा बात नहीं, मैं भी पॉलिटिकली बायस्ड की बात नहीं कर। तो अभी निर्मला मैडम क्या कर रहा है? निर्मला मैडम ड्यूटी टेस्टिंग नहीं करते हैं, जीएसटी कांस्टेंट चेंजेस लेके आता है, तो लोग ही उसको पसंद नहीं कर रहे कि इतना कौन चेंजेस करता है। और उसके बाद चिदम्बरम सबको भी माना जाता है कि हाँ उसके पास दिमाग था, ये उन्हीं का दिमाग का पैदाइश। आरसीएम जो था ये जीएसटी वालों लेके नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसका जन्म सर्विस टैक्स में हुआ था, जीएसटी को उसने कॉपी किया है। तो चिदम्बरम सबको लगा था यार पैसा तो चाहिए, वी वांट पैसा। कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? लॉ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। लॉ बनाते कौन है? सरकारी बनाते हैं, चेंज भी तो हम ही करेंगे। अच्छा मतलब बैंड बजने वाला है, ठीक है। दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि और आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाओ। ये कौन सा हुआ? स्पॉन्सरशिप हुआ। तो गाइस इन इंडिया राइट नाउ इफ यू काउंट द 1 2 3 4 एज अ सर्विस नंबर, so right now total number of taxable services, if I'm not wrong, are not less than 119. In India there is a service totally serially numbered 119 services are there on which we are paying the tax. Knowingly unknowingly हम लोग टैक्स दे रहे हैं। 119 ऐसे सर्विस है, तो उसके अंदर सारा सर्विस जो है that is not coming under this part. Some of the service will be falling under this category. The exceptional one. So sponsorship one of that. And why आपको I think प्रॉब्लम समझ में आया क्यों स्पॉन्सरशिप को यहाँ से यहाँ लेके आया गया। मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहा हूँ। ओके, इतना क्लियर हुआ? Guys, you are able to classify who is the recipient, who is the supplier. Everyone last में सर बैठे हो? Clear sir? Done. मैडम आप ग्रुप में ऐड हुए हो ना फाइनली? नहीं सर, अभी तक ऐड नहीं हुए हो? कोई आपको लिंक शेयर नहीं किया? ऐड हो जाती तो क्लास करने नहीं आती। अच्छा नेक्स्ट इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस। सर इफ यू नो द इंश्योरेंस एजेंट तो उनसे बात करके आपको एक ही चीज एहसास होगा कि हम जिंदा क्यों। असली मजा तो मरने इतना मैंने मरने में यार जिंदगी में कैसे दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऐसे सेट करते तो लगता तो वही है सर यार जिंदगी क्या करता है, ऐसे तो मरने के बाद ही तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद चाहिए। लोगों से थोड़ा बात करते हैं इंश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड। अच्छा तुम ऐसे किए हो क्या इन लोगों से बात? अच्छा फिर तुमने समझा दिया तुम किसी की गलती कर इतना डरा है? 15-20 मिनट लगा, वो बोलती कि जीना बेकार है, वो पूरा एकदम दिखा रहे हैं कि इतना इतना बिल्डिंग में क्या रियलाइज हो गया कि कोई फायदा नहीं। हाँ अच्छा ओके गाइस agency guys please focus. I'm not writing the insurance service, please focus on the word insurance agency service. तो कौन है एजेंट? आइए पर देखते हैं। इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी तीन लोग रहते हैं। नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी, whatever LIC, Bharti AXA, Bajaj Allianz, whatever. Number 1 is the insurance company. Number 2 will be the insured person, यार जो पिक्चर में हीरो है यार पर्सन है इसलिए इंश्योरेंस कंपनी है। एंड थर्ड होता है जो इन दोनों को मिलाता है, बस इंश्योरेंस एजेंट। आइए तो तीनों लोग को लिखते हैं कौन कौन है। बस एग्जांपल पूरा क्रिस्टल क्लियर है ना आप लोग का? कोई एग्जांपल पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ कॉन्सेप्ट है 2 लाइन का। सो लेट्स टेक द एग्जांपल। कौन कौन तीन है सर? पहला है इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड है इंश्योर्ड पर्सन। नहीं हम बेवजह प्रमोट क्यों करें, पैसे थोड़ी मिलेगा मुझे। यूट्यूब वालों को तो पैसा मिलता है, थोड़ी पैसा मिलेगा, इसलिए प्रमोट क्यों करूं मैं अपना क्लास में।
अच्छा jokes apart, insured company, insured person and insurance agent. बोलेंगे सर कंटाइनर हाँ मेरा अगर फॉलोअर्स हो तो पैसे देता वो लोग ऑब्वियसली, वो लोग यूट्यूबर को क्यों टारगेट करते ताकि मैक्स टू मैक्स पब्लिक को रीच कर पाए इसलिए। अच्छा एनीवे, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। सो पहला रिलेशनशिप में कर रहा हूँ एक और दो के बीच। ओके, आप लोग मुझे बताना कि एक और दो के बीच कौन सप्लायर है कौन रिसिपिएंट है। Guys, please, online students, I want participation from your side also. Guys, I think I am quite audible to all of you. मेरा आवाज clearly जा रहा है आप लोगों तक? So, the first question is, forget the insurance agent. Just consider 1 and 2 and tell me who is the supplier, who is the recipient. Sir, बच्चे को पता है insurance company will be the supplier. Supplier. A person is the recipient. Recipient. Sir, we are Recipient. पैसा ना, we are paying the amount. So amount क्यों pay करें sir? Because we are insured. Sir, health insurance हो, life insurance हो, medical हो, whatever, आपको पैसा देना पड़ता है ना. So you are paying the money means you are getting the service. You are the recipient, they will be the supplier. Done sir? कोई किसी का डाउट है? डाउट क्लियर? Okay, now please consider. अच्छा, insured person and insured agent के बीच कोई relation नहीं, खाली only introduction part. They will come and sign the form and आपको समझाएगा ये पॉलिसी बेटर है, ये पॉलिसी खराब है, व्हाटएवर। तो इतने से काम है, उसको कमीशन आप नहीं देते हो, इंश्योरेंस कंपनी देता है। ही इज गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो इंडिया में इतने लोग को अपॉइंट करना दरकार क्यों पड़ा? बिकॉज रीच आउट करने के लिए। हम लोग खुद जाके तो नहीं करवाएंगे। चलो अभी तो फिर भी ऑनलाइन होने पे बहुत इंश्योरेंस एजेंट का भी दरकार शायद कम पड़ा, बट वंस अपॉन अ टाइम जब इतना टेक्नोलॉजी हाईफाई नहीं था तो एजेंट इज द ओनली मीडियम टू डिपॉजिट द प्रीमियम ऑल्सो। प्रीमियम तो लोग को डिपॉजिट करना पड़ता है बिकॉज़ आप लोग उस टाइम तो हम लोग पास ऑनलाइन ऑप्शन भी नहीं था। गाइस आप याद करके देखो आज के डेट में डिड यू एवर विजिट एनी मोबाइल फोन शॉप टू रिचार्ज योर फोन? नहीं। अब लास्ट कब जो पता है मुझे पता नहीं, मैं लास्ट का मोबाइल फोन दुकान में रिचार्ज करने गया लिटरली मुझे याद ही नहीं 2016 2015 बट क्यों? बिकॉज़ ऑफ द पेटीएम, बिकॉज़ ऑफ द ई वॉलेट। So now this e-wallet we can use for the paying the insurance also, even electricity bill, everything. We are getting cash back. Why should I go to the from a queue and pay now? So guys, life बहुत easy हो गया. But फिर भी ये लोग है आज। अभिषेक समझ में आ रहे तो पक्का किस ख्याल में हो? अच्छा, तो guys अभी रिलेशनशिप होगा 1 and 3 के बीच। तो बोलो 1 and 3 के बीच who is the supplier, who is the recipient? सोच के बताओ। Insurance company Agent is supplier and company is recipient. very good, very good. ऑनलाइन पे जो भी बोले हो करेक्ट है सर। एजेंट इज सप्लायर, कमीशन कौन पे करता है? कंपनी। क्यों? बिकॉज कंपनी इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द एजेंट। क्लासिफाई कर पा रहे हो? रिलेशनशिप इज क्लियर। जैसे एग्जांपल अगर ठीक से माशाल्लाह समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट को देख के लॉ बना। ये सब प्रॉब्लम था इसलिए लॉ को चेंज करना पड़ा। तो प्रॉब्लम को समझते हो, यू शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। सो आई थिंक एवरी वन ऑफ माय क्लास, आई मीन जितना स्टूडेंट्स हो ऑफलाइन ऑनलाइन, आप लोग क्लासिफाई कर लियो। वासिम अगर तुम समझ गए हो तो सब लोग समझ गए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। अच्छा यहाँ पे एजेंट मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइगर। टाइगर वाला एजेंट ना, टाइगर जिंदा है, जिंदा है ना, अभी लास्ट में मर गया क्या? जिंदा है ना, वो छोड़ के बाकी एजेंट का बात हो रहा है, तो उसको कैसे कर माफ कर दो, ठीक है? सो गाइस ठीक है। अच्छा, if I consider 1 and 2, okay, now tell me one thing. Insurance policy is a matter of GST. अब बाइक इंश्योरेंस कराने जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ देखना 18% जीएसटी अलग से आएगा। वो पॉलिसी बजट नहीं दिखाएगा। ये लोग का ट्रिक अलग लेवल का होता है। सर योर पॉलिसी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4999। आप जैसे पे करने जाओगे नीचे आएगा छोटा करके 18% जीएसटी, तो 4999 बिकम 600। सर पहले क्यों नहीं बताया? नहीं था ना टर्म्स एंड कंडीशन। चेक कर लेना, मजाक नहीं कर रहा। प्रीपेड कनेक्शन में तो चलो सर पहले से तय है कि 199 250 नहीं है। पोस्टपेड पैसा नहीं आता, पोस्टपेड प्लान आता, 4999 का प्लान। अब जैसे ही करोगे बोलेगा सर वेट रुको जरा, प्लस 18% जीएसटी, तो बिल हो जाएगा आपका 600 के आसपास। तो सर ये सब चीज होता है मार्केट में, अब देख लेने को थोड़ा।
तो गाइस अब एक बात बताओ, प्लीज टेल मी वन थिंग, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, कायदे से कौन टैक्स पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। क्या इन केस में सप्लायर से टैक्स लेना इजी है कि रिसिपिएंट से टैक्स लेना? गवर्नमेंट को इनसे टैक्स लेना इजी लगेगा, कंपनी से कि इससे? तो सप्लायर से वो तो पूरे 7-8 कंपनी है जो है मार्केट में, बट इंश्योर्ड पर्सन काउंटलेस। सर इतना अगर पब्लिक के ऊपर आ जाता ना तो 11 मुल्क क्या पूरा दुनिया का पुलिस भी ढूंढ नहीं पाता कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। डालोगे ना 11 मुल्क के पुलिस डॉन को पकड़ना तो ये डालोगे तो कम पड़ जाता, इतना लोग है इंडिया। तो सर ये वाला तो रहेगा, ठीक है। अच्छा जाइए 1 और 2 क्लियर हुआ, 1 3 में देखो राठौड़ साहब क्लियर हो रहा है, हो गया होगा नहीं सर। अच्छा 1 and 3। So guys, 1 is the recipient again insurance company, but situation change हो गया ना, supplier is the insurance agent। कीर्ति जी आप बताइए मुझे कि 1 और 3 सिचुएशन में टैक्स लेना किन से इजी रहेगा, इनसे इनसे? और इतना सोचे क्या बात है सर, कुछ भी हो जाए रहेगा ना सर। एजेंट भी नंबर में कम नहीं, बहुत ज्यादा है। टाइगर भाई सबको छोड़ के किसी को नहीं पहचान तो आपको तो ढूंढना मुश्किल है कि ना मुमकिन। सर गवर्नमेंट बोला कि सर इन लोग से अगर मैं जीएसटी लेने जाऊंगा तो मुझे मिलने सकते, बट ये कहाँ जाएगा? ये तो रहेगा ना। पर इनसे जब भी लेने गया तो बोला भाई आप लॉ क्या बनाए थे, टैक्स इज पेड बाय द सप्लायर एंड बोर्न बाय द रिसिपिएंट। तो मैं कौन हूँ? रिसिपिएंट। यू आर, व्हाई यू आर आस्किंग? आई एम नॉट अ सप्लायर। ऑब्वियस सी बात है सर, रूल में क्लियर कट मेंशन है कि जीएसटी इज पेड बाय whom? It's supplier and borne by the recipient. If you are going to ask and pay the GST to the insurance company, so they will say that the law ने आप ही तय की हो कि सप्लायर पे करेगा, हम तो रिसिपिएंट है, मुझसे क्यों मांग रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्व आ रहा है। चिदम्बरम सबके सब प्रॉब्लम लगा और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला ओके कौन हम लोग को रोक रहा है? सर लॉ रोक रहा है। तो लॉ को हटाएंगे, उसको अमेंड करेंगे। मूवी चलता है 3 चीज के लिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लॉ होता है अमेंडमेंट एमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट, ठीक है। तो लॉ को चेंज कर डालो, लेट्स चेंज द लॉ। ओके ओके, तो लॉ चेंज करने जाएगा तो बवाल खड़ा होगा। तो गवर्नमेंट ने पहले देखा कि मुझे परेशानी किन किन जगह से हो, गवर्नमेंट ने ऐसे 16 सर्विस को ढूंढा जहां पे गवर्नमेंट को जेन्युइनली परेशानी लगा कि टैक्स जो है वो इनसे कलेक्ट करने इसकी है, rather than the supplier। तो एक नोटिफिकेशन लेके आया और बोला दिस ऑफ द सर्विस हैज बीन क्लासिफाइड अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज। व्हाट इज रिवर्स चार्ज सर? इन आरसीएम जीएसटी इज पेड एंड borne both by the recipient। सप्लायर का कोई भी लेना देना नहीं है। सर हाउ शैल वी क्लासिफाई दैट कि हम लोग रिवर्स चार्ज में है कि नहीं है? अगर लाइफ में कभी भी आपके ऊपर ऐसा प्रोविजन आए, you are going to buy something, whatever, buy a goods or buy a service, and you are getting instruction that after the buying of such product or service, you have to pay the tax, not to the shopkeeper but to the government। सोचना वो राशि सर किससे बोलिए एक बार? श्योर, you are going to buy something, आप कुछ खरीदने वाले हो, क्या खरीदोगे? either goods or service खरीदोगे। so after buying that you are getting an instruction from a shopkeeper कि whatever the tax is charged on such product or service, जो भी टैक्स इसके ऊपर चार्ज होता है वो टैक्स आप मुझे मत दीजिए, वो टैक्स आप किसको दीजिएगा? गवर्नमेंट को दीजिए। तो आप सेल करने गए थे कि बाय करने गए? यू आर गोइंग टू बाय समथिंग एंड यू आर इंस्ट्रक्टेड दैट यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो आप तो रिसिपिएंट हो ना, तो रिसिपिएंट आप ही हो, तो इंसिडेंस भी आप ही के ऊपर आ रहा है। यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड बर्डन आप ही के दिन से देना होगा। तो जान लेना वो रिवर्स चार्ज। तो ऐसा कि आप लोग का लाइफ में कभी सिचुएशन आया अभी तक? तो कोई भी आप लोग आपसे अवेल नहीं किए, तो आज तक आप लोग ऐसे अवेल नहीं किए। जिस दिन अवेल करोगे यू विल बी गेटिंग द इंस्ट्रक्शन, बिल पे लिखा हुआ रहेगा कि टैक्स इज पेड बाय द रिसिपिएंट। ओके, तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या बोला था? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ नॉर्मल मैकेनिज्म? कि जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर और बाय द रिसिपिएंट। अभी आज से मतलब सिचुएशन सेम की पलट जाए, रिवर्स हो जाएगा। तो सप्लायर से हट के किधर आ जाएगा? रिसिपिएंट। जैसे ही बात बोलता हूँ कोई एक स्टूडेंट पक्का इसको कैच करके बोलते हैं सर
आप भी तो हम लोग गलत सिखा रहे हो कैसे? सर डायरेक्टर्स का डेफिनेशन क्या बोला था आपने? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन पर्सन। तो सर आप तो आरसीएम में तो ही कर रहे हो। आपने बात अभी क्या बोला थी, क्या बात की है कि इन अंडर आरसीएम जीएसटी इज पेड एंड बॉन्ड बोथ बाय द रिसिपिएंट और इंसिडेंस भी रिसिपिएंट के ऊपर, इम्पैक्ट भी रिसिपिएंट के ऊपर। तो जब इंसिडेंस इम्पैक्ट सेम पर्सन होते हैं तो वो डायरेक्टर से डायरेक्टर हो जाता है। सर जीएसटी का डायरेक्टर बोला जाएगा? जी हेलो डीडी का से पढ़ने जाएंगे। इट्स एन एक्सेप्शन। आरसीएम होना मतलब इट्स नॉट बिकम अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज एन एक्सेप्शन फॉर द रूल। सर एक्सेप्शन इज ऑलवेज। You believe in this logic? Absolutely, sir. In this variety of world, exception is always. केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हम पढ़े नहीं थे यार। हम सर एक पढ़ के दिल से ही पढ़े थे, केमिस्ट्री दिल से नहीं पढ़ते थे। ठीक है। अच्छा एनीवे, सो गाइस रिवर्स सर्च क्यों है समझ में आया आप लोग का? डॉक्टर साहब क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो टैक्स लेना प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अगर एजेंट से लेने जाओगे तो गवर्नमेंट को कभी टैक्स मिलेगा। क्योंकि एजेंट बोलेगा, पहले बताइए इनको ढूंढना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ढूंढ मिलेगा तो क्या कर लेगा? बोलेगा टैक्स नहीं देना है, तो गवर्नमेंट का ही काम रहेगा। बट ये कहाँ जाए? इसको कोई पूछ रहेगा तेरा क्या हुआ कल? मुझे बोलेगा हमने आपका नमक खाया तो बोला भी टैक्स दो। बात खत्म। तो रहेगा, इसको तो बिजनेस करना है, उसको पकड़ो। बट लॉ ने हाथ को रोक लिया। अरे हाथ को लॉ अगर रोक लिया तो हाथ खोल भी लेंगे हम लोग, क्या करके? लॉ को अमेंड करके। तो फॉरवर्ड चेक से हटके हम लोग कहाँ पे आ गए? तो क्या इंडिया में हर एक सर्विस आरसीएम में है कि कुछ स्पेसिफिक सर्विस? तो आज के डेट में 16 to 17 ऐसे सर्विसेज है इन इंडिया जो आरसीएम के अंदर है, और जिसके अंदर प्राइमरी एक ही है। In such services, tax is paid by the recipient. Why? Because that is much easy. IPL से टैक्स लेना इजी है कि ड्रीम इलेवन से लेना इजी है? गवर्नमेंट को किसको? ड्रीम इलेवन सर उसको बिजनेस करना है। आईपीएल खत्म तो किसी और टूर्नामेंट पे ये करेगा, तो वो तो सारा साल रहेगा मेरे सामने, तो उसी से ले लो। तो उससे नॉर्मली ले पाओ कि आरसीएम में डालना पड़ेगा? आरसीएम में डालना पड़ेगा। Every one of you getting this? Yes, no. Why RCM? अभी क्लाइंट लिख के इसे कंक्लूड करें। तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स लॉजिक इज क्लियर कि व्हाई आरसीएम, आरसीएम क्यों लेके आया? समझ में आया? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल टू यू प्रॉपर्ली। एवरीवन, only Priyanka is responding. Rest of the student, okay. So guys, please write down single sentence. मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, now if anyone is asking you कि what is RCM, your definition should be start like this. अगर आपसे कोई पूछे कि explain RCM या what is RCM, तो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ आपका डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो शुरू करें? तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज आरसीएम? So write down the answer. Normally, GST is paid by whom? GST is paid by the supplier. Normal case. Normally, GST is paid by supplier and borne by the recipient. But under the RCM, GST is GST is paid and borne both by
धीरे धीरे आ रहे हैं सर। सुन रहे थे क्या? सर क्या नाम है आपका? अंकित श्रीवास्तव। ग्रुप में तुम्हें ऐड करना था क्या? तुम मुझे बोल रहे थे क्या सर ऐड नहीं किए? हाँ हाँ भाई। तुम क्लास तो खत्म होने वाला है। हो गया। ठीक है, सुने थे पूरा क्लास में? सुने थे ऑनलाइन? थोड़ा सा सुना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लेना। यस सर, तो ये लाइन क्लियर है सब लोग का? यस सर। Socially, will you be able to explain this? Junior is asking any interview, any mock interview, sir, will be done. अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बोलना होगा ना? ये बोलने के बाद सामने वाला कुछ समझ में नहीं आया, अगर आएगा भी तो एक्टिंग करेगा, कुछ समझ में नहीं आया। इंटरव्यू का यही नियम होता है, अगर वो समझ भी जाएगा तो एक्टिंग करेगा, कुछ समझ में नहीं आया, ताकि आप और कंफ्यूज और गलत बोलो। तो आप लोग गलत बोलना है कि सही एक्सप्लेन करना है? सही एक्सप्लेन करना है। तो सर हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि नॉर्मली जीएसटी इज पेड बाय द सप्लायर एंड बॉर्न बाय द रिसिपिएंट। पहला लाइन क्लियर है ना? ये तो जीएसटी नहीं है, इंडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन हुआ कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉलोड डिफरेंट पर्सन, तो मतलब तो ही हुआ सर। आर्टिफिशियल का मतलब है सिचुएशन को रिवर्स करना, तो जो सिचुएशन ऊपर उसको रिवर्स कर दिया, डन। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? इफ एनी इज आस्किंग व्हाई रिवर्स, तो आपके पास क्या आंसर है? बिकॉज सर देयर इज सम सर्कमस्टेंसेस और सम सिचुएशन जहां हम लोग को लगता है कि टैक्स जो है वो किन से इजी है लेना, रिसिपिएंट से ज्यादा इजी रादर देन द सप्लायर। तो गवर्नमेंट उन्हीं सर्विस को क्लासिफाई किया और कहां डाल दिया? आरसीए में डाल दिया, तो गवर्नमेंट को क्या मिल जाए? टैक्स मिल जाए। तो पहले आके मैं आप लोग से सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट के जगह आप होते तो आप लोग का टारगेट क्या होता? कि टैक्स क्या दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि टैक्स इंपॉर्टेंट? तो जब मुझे रिसिपिएंट से इजी लगा तो आरसीए में डाल दिया, और नॉर्मली सप्लाई तो था ही। टैक्स हर किसी से लेना है, छोड़ना नहीं है। तो आईपीएल वालों से टैक्स लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि घर का ही लोग। निर्मला मैडम किसको नोटिस भेजेगा? अनुराग ठाकुर को। देखना हर मीटिंग में भी भाई साहब रहता है ट्रांसलेटर बन के। अनुराग मैम सॉरी क्या बोल सॉरी वो निर्मला मैडम इंग्लिश में बोलते हैं, भाई साहब उसको हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। टू मच बोरिंग, मतलब इतना बोरिंग फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब स्पीच इतना बोरिंग। कल बजट आ रहा है मंडे को, तो उनका लंबा चौड़ा एक और बजट बोरिंग स्पीच सुनना पड़ेगा हमको। यार जेटली साहब ऊपर उनका आत्मा को शांति थे, फिर भी इंटरेस्टिंग बोलते थे। तो बट लालू जी इज द बेस्ट स्पीकर यार, बोलना चाहिए तो उनकी तरह बोलना चाहिए यार, मतलब सुन के अच्छा लगेगा। मोदी जी इज अ गुड स्पीकर यार। तुम्हें मतलब बोल के तुम्हें गुस्सा भी दिला सकता है, हंसेगा भी। ये लोग ना तो तुम्हें हंसा पाएगा ना तो गुस्सा दिला पाएगा। बैठ के रहो, कोई सो रहा है कोई सो जाए, क्या फर्क पड़ता है? रीडिंग पढ़ना है तो हम लोग तो बचपन स्कूल में था रीडिंग पढ़ना, तो टीचर आके बोलते थे स्टार्ट डूइंग, मुझे आज तक समझ में नहीं टीचर क्यों करते थे। हम लोग को तो न्यूज एंकर तो बनना नहीं था। अर्नब गोस्वामी जैसे तो बनने का सपना देखे थे कोई? आई डोंट थिंक तो कोई देखे होंगे। तो वो भाई साहब की तरह हम लोग को पढ़ने बोलते थे। ये लोग इतना फालतू का, मतलब मंडे भी ऐसा होने वाला है बोरिंग स्पीच। और मंडे देखना कुछ भी हो जाए देश में, हर एक न्यूज चैनल उस दिन टैक्स कंसल्टेंट जरूर मिलेगा। ज्ञान बढ़ा देते हैं। और इतना अच्छा सब बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, रविश कुमार हो या वो चौरसिया हो, ठीक है, या हम लोग का राजेश शर्मा आते हैं, आपकी अदालत ही करते हैं। अच्छा अर्नब जी भी रहेगा। ये उस दिन हर लोग टैक्स कंसल्टेंट बनने वाला है, और आपको इतना अच्छे से टैक्स समझाएगा, पूरा बात कभी नहीं बोलेगा। फिर आप किताब में आप कुछ और पढ़ोगे, फिर आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं इस बार, देखते क्या चमक धमक आ रहा है बजट में। तो ज्यादा नहीं, मंडे को ही है शायद, मंडे की 1 तारीख को है ना, वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो एनीवे अच्छा, तो गाइस एग्जांपल लिख लो। मोदी जी इज अ गुड स्पीकर। एग्जांपल मतलब भाषण ऐसा दो ताकि सुन के अच्छा लगे, मन को बहल जाए, ठीक है। तो बोरिंग भाषण क्यों देते हो, ठीक है। क्या किए थे? अच्छा
अच्छा, आप लोग do not write insurance service, always try to write insurance agency service. Insurance service is not in reverse sir. Agency service में अच्छा, इसके अंदर हर एक तरह का इंश्योरेंस एजेंट आएगा ओनली, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस. अच्छा, रिकवरी एजेंट भी आएगा. रिकवरी एजेंट यू नो, देयर आर बहुत लॉट्स ऑफ बैंक्स दे अपॉइंट द रिकवरी एजेंट. आपको कमीशन उतना मिलेगा जितना रिकवर करके लेके आओगे. रिकवरी मतलब आउटस्टैंडिंग लोन, एनपीए को रिकवरी करने के लिए हर एक बैंक का रिकवरी सेक्शन रहता है. ठीक है, तो उसमें अगर मूसा भाई टाइप कोई अगर आ जाए तो अच्छा बात है, जिससे लोग डरेगा. ठीक है, वो एक मूवी आया था ना EMI बोल के, तो उसमें था संजू बाबा का. एनीवे, स्पॉन्सरशिप सर्विस, इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस. थर्ड है हम लोग का जीटीए सर्विस. आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है. जीटीए ये कोई गेम का नाम नहीं है, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. आप लोग बोलेंगे सर जीटीए कौन सा वर्जन? 5.4. जीटीए गेम भी है ना, पॉपुलर गेम, तो वो वाला नहीं है. ये जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. अच्छा, ट्रांसपोर्टर का बात है. ट्रांसपोर्टर जो लोग का गाड़ी का बिजनेस होता है वो लोग का जीटीए होता है. ठीक है, तो वो आप लोग को पढ़ना ही है, पता है, जीटीए पढ़ना है. मार्केट में ही दरकार होगा आपको. ठीक है. अच्छा, लीगल सर्विसेज. ओके गाइस, ऐसा और भी सर्विसेज है. ओके, टोटल 16 सर्विसेज आर देयर, मैन पावर सप्लाई एंड ऑल दैट. बट अगर हम लोग रिवर्स सेज पूरा पढ़ेंगे तो क्वाइट लेंथी हो जाएगा, जो आप लोग के लिए उतना एप्रोप्रिएट दरकार नहीं है. तो हम लोग वही सर्विस को लेंगे जो आप लोग को डेली लाइफ में दरकार होगा. तो जीटी इज वन ऑफ दैट. ट्रांसपोर्ट का बिल आपको मिले नहीं, हो ही नहीं सकता कि आप जॉब करो और आपको बस ट्रांसपोर्टर का बिल नहीं आया. तो यू शुड क्लासिफाई मैन पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टर. ओके, लीगल सर्विस आल्सो, बिकॉज़ दैट इज कमिंग अंडर द रिवर्स सेज. अच्छा, देयर इज अ मिथ इन द स्टूडेंट, स्पेशली आईसी स्टूडेंट के अंदर ये मिथ हम देखे, और मैं बहुत बार बोल बोल के थक चुका हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. बट आई डोंट नो आप लोग के दिमाग में कहां से आइडिया आता है कि अनरजिस्टर्ड से परचेस करना मतलब आरसीएम. ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है. जैसे टैली का पेपर आता है, स्टूडेंट देख के देखता है, अच्छा परचेस में अनरजिस्टर्ड डीलर, चलो आरसीएम में डाल दो. ये लॉ पहले आया था कि 5000 से ज्यादा अगर परचेस हो रहा है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, दैट शुड बी अट्रैक्ट आरसीएम. बट दैट लॉ स्टिल पोस्टपोन्ड और abolished, you can say, because सेक्शन को था 95 की 94 4 या 5 कुछ ऐसा था. ठीक है, 94 सर. तो वो रिवर्स सर्च अभी भी नहीं है. तो प्लीज गाइस, अगर आपको सब एक सर्विस आएगा ना सर, रियल स्टेट वाला सर्विस, वो ओनली एक ही है जिसमें सिविल इवेंट परचेस करने पे लगता है. बट अनरजिस्टर्ड डीलर का इतना कहानी नहीं है. लोग तो ये देखते हैं कि अनरजिस्टर्ड डीलर से मोबाइल फोन परचेस किया, बोलते आरसीएम है. राइट, हम लोग बोलते ऐसा कौन बोला? मुझे सर टैली क्लास में हम लोग देखिए. प्लीज गाइस, टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, अनरजिस्टर्ड पहले बात तो गुड्स है ही नहीं इसके अंदर. होगा तो चुने हुए 2-3 गुड्स है, बेटल नट्स वगैरह, ये सब कुछ है, वो सब पार्ट है. मतलब नॉर्मली कपड़ा, फोन, घड़ी, ये सब में कुछ भी आरसीएम नहीं है. तो ऐसा मिथ अगर आपके मन में है, इफ आई एम गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, so RCM shall be applied. It's a wrong concept. RCM is applicable on exclusively on services. Which services? I have named 4. हमने 4 सर्विसेज का नाम लिए. तो आप और भी लिस्ट इसका लंबा, तो only that service is coming under the RCM. तो आपको अगर पढ़ने सर्विस को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, समझ में आया? तो हेडिंग करो जीटीए सर्विस. You are taking service from advocate. कितना पुस्तक अच्छी है?
इफ यू आर अ बिजनेस एंटिटी, ओके। अच्छा, ये इंडिया का एक बहुत ही अच्छा चीज मुझे लगता है कि जो लॉ बनाता है ना, सबसे पहले वो अपना बचाव करता है। कैसे? ऑडिटर ने जब ऑडिट स्टैंडर्ड तय किया चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ने, सबसे पहले यही लिखा कि ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ गारंटी। तो आज कोई सीए अगर ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है कि इट्स शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, नीचे डिस्क्लेमर भी आता है किस बेसिस ऑन दैट हम लोग कंप्लीट चेकिंग नहीं किए थे, लिमिटेशन वगैरह पर। तो आज अगर कोई ऑडिटर स्टेटमेंट पढ़ के कोई कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, कोई कंपनी का डिवेंचर में पैसा लगा रहा है, पैसा डूब जाता है, यू कैन नॉट सू द ऑडिटर कि भाई तेरा कमेंट पढ़ के हम पैसा लगाए। ऑडिटर अपने लिए पहले बचाव कर लिया, डॉक्टर लोग ने पहले अपने लिए बचाव कर लिया। तो ऑपरेशन टेबल पे कुछ बॉन्ड साइन पता है ना, साइनिंग द बॉन्ड, एग्जैक्टली वो हो ही सकते हैं बिकॉज़ दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। एक्सीडेंट ऊपर वाला ना कर हो जाता है। तो जब लॉ बन रहा तो लॉयर लोग किसी के लिए, तो जीएसटी जब आया तो लॉ जब बन रहा था तो लॉयर लोग को जीएसटी के अंदर रहना ही नहीं था। बट अगर मैं लॉयर लोग का नाम करूं जॉली एलएलबी को छोड़ के, बाकी लोग तो करोड़ों में पैसा कमाता होगा। माथुर सर को ले लीजिए, उन मूवी जो था प्रमोद माथुर जो दिखाया गया था मूवी में, तो जेठमलानी बोलो या हम लोग कपिल सिब्बल साहब बोलो या कोल इंडिया का जो टॉप पैनलिस्ट लॉयर, अच्छा सलमान खान साहब का जो लॉयर है कि उनके फीस 1000 रुपए है, लाखों सलमान खान है वो, एक बार का बाबू मिलने का 10 लाख रुपए केवल। सालवी ना क्या सुन सालवी कुछ ऐसा नाम है उनका, ठीक है। मुकेश अंबानी जी का भी पहला लॉयर है, मिलने के 10 लाख सर वो सलमान खान। तो देखो केस किसका ले रहा है, विवेक ओबराय केस नहीं ले रहा, सलमान खान का ले रहा है। ठीक है, तो उनका 10 लाख क्या है उनके लिए, मुकेश अंबानी का 10 लाख क्या है। ठीक है, तो ये लोग का जो इतना करोड़ अरब रुपए कमाते हैं, तो ये लोग अगर जीएसटी से बाहर चला जाएगा, चिदम्बरम से फिर घुस जाएगा यार, पैसे तो नहीं मिल रहा। तो लॉयर लोग पहले ही बोला कि देखो भाई हम लोग को टैक्स के जंगल में तो आना है, तो लीगल चार्जेस जो है आधा लीगल चार्जेस एग्जेम्प्ट है। अगर कोई फैमिली इशू हुआ, कोई सिविल, अच्छा जानते हो सिविल मैटर होता है और एक आपका क्रिमिनल ऑफेंस होता है आर्बिट्री। ठीक है, तो सिविल ऑफेंस जितना सारा है, घरेलू मामला जितना सारा जमीन का घरेलू का है, दैट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्रिमिनल मैटर भी ऑलमोस्ट एग्जेम्प्टेड है। तो सर टैक्सेबल कौन सा है? ओनली द बिजनेस मैटर। क्या बिजनेस मैटर? आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किए, कोई आपका कॉपीराइट चुरा लिया, होता है ना सिंपल मार्केट में, आपका कोई थीम कोई और ने चुरा लिया, तो आप किसके पास जाओगे? कोर्ट के पास जाओगे और उसके साथ कोई जजमेंट मिलेगा, तारीख नहीं मिलेगा, बस पैसे ज्यादा है, तो जज भी सोच समझ के जजमेंट देता है। तो लॉयर बोलते हैं कि अगर कोई लीगल सर्विस ले रहा है द ग्राउंड ऑफ बिजनेस, दैट इज टैक्सेबल, बट टैक्स पे करेगा जो सर्विस लिया है अंडर आस्ते। तो आज जैसे कि मान लो मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, अक्षय कुमार सब पहचानते हो उनको, ठीक है, द खिलाड़ी अक्षय कुमार जो साल में 5 मूवी तो कर ही लेता होगा आराम से, 3-4 तो कर ही लेता है। ठीक है, पैसा बहुत है। ठीक है, 2012 में एक मूवी आया था भाई साहब का जोकर बोल के, किसी को याद होगा, कोई याद नहीं होगा, आपको पता है वो मूवी वाज प्रोड्यूस्ड बाय द फराह खान, उसका एंटरटेनमेंट था और अक्षय कुमार का भी कुछ इन्वेस्टमेंट था उसमें, पर ज्यादा फराह खान का ही प्रोडक्शन था उसमें। तो फराह खान ने क्या किया था उस टाइम पे कि मूवी में प्रमोशन के लिए शाहरुख खान साहब को घर पे कुछ करेला कद्दू कुछ कैरेक्टर तो भेज दिया। अक्षय साहब को बुरा लग गया कि आई एम द स्टार और मेरा मूवी का प्रमोशन शाहरुख खान क्यों करेगा। लिखा था कमेंट कोट अनकोट लिखा था, ट्विटर में आया भी था, आप चेक करके देखना, ऐसे आगे मिलेगा। शिरीष कुंदर वो था डायरेक्टर, फराह खान का हस्बैंड। तो अक्षय कुमार को उस मूवी का फादर प्रमोशन नहीं किया, उसी से अक्षय कुमार का ओएमजी आया था, ओ माय गॉड मूवी आया था, और भी राउडी राठौड़ आया था, और भी ब्लॉकबस्टर आया था, बट वन ऑफ द दैट मूवी पता नहीं अक्षय कुमार क्यों करते सब मूवी, जो भी है उसका मर्जी वो करते हैं, तो उसमें नहीं किया था। तो जितना सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर राइट लेके रखे थे, वो सब लोग अक्षय कुमार के पे केस फाइल करते थे। क्यों? कि भाई साहब ने प्रमोशन नहीं किया इसलिए मेरा मूवी फ्लॉप गया, मुझे पैसा वापस से। तो ये जो केस हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, अक्षय कुमार का प्रोफेशनल के ऊपर हुआ कि अक्षय कुमार के ऊपर हुआ? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आज का डेट में शाहरुख खान साहब वो टीटू के टॉक में ऐसे नहीं आते, बोल रहा हूँ था ना टीटू का टॉक बोल के आया था ना, वो बोलने के आगे तो पहले एपिसोड तो शाहरुख खान से कहते हैं, शौक से नहीं आ रहा है, उसको पता है कि मुझे प्रमोट करना है क्योंकि प्रोड्यूसर ने ऐसा बोला है, इसलिए वो यूट्यूबर के पास जाता है। अक्षय कुमार के चैनल में ऐसा नहीं आता है, गोल्ड मूवी के टाइम पे आया था, तो इस लोग आते हैं बिकॉज प्रोड्यूसर का प्रेशर रहते हैं लोग ऊपर के आपको प्रमोट करने के, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, तो उस टाइम पे अगर कुछ भी वायलेशन आपके एंड से हो रहा है
तो प्रोड्यूसर हैज राइट टू टेक पेनल एक्शन अगेंस्ट यू। तो ये सब जो केस बनते हैं कोई घरेलू मामला नहीं है, कोई क्रिमिनल ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इस तरह का मामले में अगर कोई लॉयर को अपॉइंट करते हैं, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा आपको, तो उस लॉयर का फीस के ऊपर जो जीएसटी बनेगा वो पे करेगा जो लॉयर का रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस। तो लीगल चार्जेस इस केस में आरसीए में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में हम लोग जाएंगे। ये सब लोगों को समझ में आया? एग्जांपल लाइव एग्जाम तो इसलिए तो था कि आप लोग केस क्रैक कर पाओ, कि आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है। शाहरुख खान साहब के ऊपर केस करो तो अलग बात है, बट रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो उनका प्रोडक्शन हाउस का नाम है वो उनका प्रोफेशनलिज्म क्या है, उसका जितना सारा मूवी सब उसी बैनर किया रेड चिलीज। क्लियर? समझ में आया? चलिए ये लिस्ट थोड़ा लंबा होगा, हम लोग लिस्ट नोट डाउन करेंगे, तो आप लोग मुझे कंफर्म करके बोलो कि ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड चार्ज एंड आरसीएम में बात क्लियर हुआ? अच्छा आप लोग हेडिंग जीटीए को किए हो ना, हम लोग जीटीए पढ़ेंगे वो, बट उससे पहले क्विक रिकैप, 2 मिनट का क्विक रिकैप तो बनता ही है। गाइस आज हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे कॉन्सेप्ट माइंड में लेके कि आरसीएम क्या है। आरसीएम स्टैंड्स फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट उससे पहले वी हैव डिस्कस्ड द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर? इट्स द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कि जीएसटी इज पेड बाय द कौन? सप्लायर एंड बोर्न बाय द रिसिपिएंट। So this is the common concept, you all know, you must go through it. But sir problem तब होता है जब दोनों ही रिसिपिएंट को करा। तो सबसे पहले हम लोग ये तय किए गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, जब लॉ अच्छा जा रहा था तो एक चीज और ऐड करना क्यों दरकार। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लिए। पहला एग्जांपल तो हम लोग का इवेंट मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप स्ट्रक्चर, एंड वी हैव टेक एग्जांपल ऑफ आईपीएल। इस साल ड्रीम 11 वाज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल एंड आईपीएल इज इवेंट। इस केस में ड्रीम 11 को क्या मिला? पब्लिसिटी मिला। जितना बार आईपीएल स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग ही हुआ ड्रीम 11 से। वेलकम ड्रीम 11 प्रेजेंट्स आईपीएल 12 था ना इस बार, ये 13 था आईपीएल 13 2013 2013 ऐसे करके बोलते हैं। फिर आईपीएल का कहानी स्टार्ट होता है। तो गाइस ड्रीम 11 क्या मिला? इस बार पब्लिसिटी मिला। तो आज एक बात बोलो, अगर हम लोग पुराना लॉ फॉलो करते हैं तो टैक्स तो आईपीएल को देना चाहिए था। इस बार आईपीएल सितंबर में हुआ था ना, सितंबर अक्टूबर में हुआ था ना, तो अक्टूबर के बाद अभी आईपीएल एग्जिस्ट है? कौन सा प्लेयर कौन सा टीम के साथ था? उसने भी बोला कि अभी तो टीम बनाएगी, टीम रेडी होगा, फिर से प्लेयर शफलिंग होगा, कोई छोड़ेगा कोई पकड़ेगा, जो रिटेंशन है वो रिटेंशन, बट ओपन भी तो रहता है ना, मतलब एवरीथिंग इज अंडर प्रोसेस। जिस दिन ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये क्या करेगा? ये तो बेचारा रहेगा, इससे तो लेना आसान है, बट कैसे ले पाओगे? लॉ तो आप ही ने बना के रखो, तो हमने अगर लॉ बना के चेंज हम ही करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अमेंड करके आरसीएम डाला और इनसे ले लिया। क्या सारा सर्विस आरसीएम में आ गया? जहां जहां लगा कि पैसा इनसे लेना इजी रहेगा रिसिपिएंट से rather than the supplier, उन्हीं को आरसीएम में डाला। सर समझ रहे हो? सर आप सिचुएशन समझ में आ रहा है सर आपका? पक्का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। गाइस तो उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस में 3 लोग का जिक्र किया हम लोग। वी हैव मेंशन 3 पीपल। एक है इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है इंश्योर्ड पर्सन एंड थर्ड है एजेंट जो पिक्चर में आते हैं। सर हम लोग की रिलेशन बहुत सिंपल है, वी आर द रिसिपिएंट, दे आर द प्रोवाइडर। तो केस तो नॉर्मल चैट भी है, बट ये और ये जो पिक्चर में आते हैं 1 and 3 सिचुएशन तब चेंज हो जाता है, क्योंकि सप्लायर कौन बन जाता है? एजेंट। सिद्धार्थ सप्लायर कौन बन गया? एजेंट बन गया। रिसिपिएंट कौन बना? इंश्योरेंस कंपनी। तो सप्लायर को पैसा देना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसा देता है। क्या देता है? कमीशन। जितना पॉलिसी लेके आओगे उतना कमीशन मिलेगा, यही तो नियम है ना उन लोग का। तो सर इन केस में अगर इससे टैक्स लेना जाए तो इजी रहेगा, इसको पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर इससे लेने जाओगे तो लॉ पकड़ लेगा। लॉ मतलब सर रिसिपिएंट है, तो सेम लॉ की चेंज डाल दो आरसीएम। तो आज अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आरसीएम, तो आंसर स्टार्ट शुड बी आरसीएम से स्टार्ट करने से एफसीएम के बारे में तो एक बार बोलना ही पड़ेगा कि व्हाट इज एफसीएम। सर नॉर्मली जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर, borne by the recipient. This is called forward charge mechanism. But there are some circumstances or there are some situations where GST is paid and borne both by the recipient, and that is reverse charge. Why? Because government को लगा सर recipient से लेना ज्यादा easy है rather than the supplier. बोल के example दे। Sponsorship service और कौन सा service? The insurance agency service, legal services, manpower supply, GTA। तो हम लोग GTA, मैनपावर सप्लाई, ये सब लीगल सप्लाई, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मार्केट भी इधर करूंगा। ठीक है, तो मैं हेडिंग क्या किया? GTA सर्विस। चलो एक दो लाइन लिख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है।
तो गाइस अगेन वही मेरा ऑलवेज अच्छा लगता है कि लेट्स टेक मतलब मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिकल बात डिस्कस करते हैं। किताबी भाषा पढ़ के क्या होगा, आप लोगों को याद रहेगा फिर भूल जाओगे। थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ केस उठाते हैं ताकि आपको समझ आए कैसे क्यों है। आज अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में, तो आपका सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या है। सर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में दो केस है। केस नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये तो होता है ना, इफ आई कंसीडर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, चलो और ब्रॉड करके लॉजिस्टिक कंपनी, नाम तो सुने होगा ना। तो लॉजिस्टिक में दोनों ही आते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों ही है। बट व्हाट इज ऑल अबाउट सर? So it's all about two things, either transportation of passenger or transportation of goods. GTA जो है वो transportation of passenger के लिए है, sorry transportation of goods के लिए, because goods transport agency के बाद passenger का केस तो पहले बात तो है ही। तो रास्ते में जितने सारा बसेस जो पैसेंजर कैरी करते हैं, नेशनल हो या डोमेस्टिक, आई मीन विद इन द स्टेट हो, नेशनल मतलब बहुत सारा बसेस इंटरसिटी चलते हैं। अब कोलकाता में चले जाओ, शाम को बाबूगढ़ में आपको बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का हर एक जगह का मिलेगा। तो चले जाए जो लोग ट्रेन में बस ट्रैवल करते तो दोनों अलग अलग स्टेट में होता है ना, और विद इन द स्टेट भी मिलेगा आपको। यहाँ दुर्गापुर चले जाओ, आसनसोल चले जाओ, विद इन द स्टेट भी मिलता है आप लोग को। तो ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर तो जीटीए के अंदर पहले बात नहीं है। तो कौन आएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में आएगा। अब गुड्स के अंदर अगर लोगे तो उसमें दो बात और है, एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है कुरियर। आज मान लो हम लोग का ये वॉशिंग मशीन, ये ऑलवेज उड़ता रहता है। तो मान लो इसका कोई चाहने वाला बाहर रहता है बॉम्बे और इसको गिफ्ट करना है, तो तुम उड़ के जाओगे गिफ्ट को उड़ाओगे कैसे? कबूतर के पैरों में कुरियर के पास तो DHL, ओके, गाती लिमिटेड और भी बहुत सारे कंपनी है, ब्लू डार्ट ओवरनाइट कुरियर कर देगा। मतलब आज ट्रांसफर करो कल आज ही पहुंच जाएगा। ऐसे भी कुरियर सर्विस होता है, DTDC है, इट्स अ कुरियर। और दूसरा है नॉर्मल पार्सल, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक पे चढ़ा दो, सामान बस रास्ते से जा रहा है, भेलपुरी खाएगा, आई डोंट नो क्या होगा। अभी पूरी नंबर 1 रिलीज हुआ है, गाना तो बहुत पॉपुलर है ना। तो एनीवे सो गाइस ये दो केस है हम लोग का। तो तीन केस हम लोग के सामने है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स के दो केस है, कुरियर एंड नॉर्मल। जीटीए इज फोकस ऑन द नॉर्मल वाला ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर इसके अंदर नहीं आएगा। तो जीटीए के अंदर कौन सा चीज एक्सक्लूसिवली आएगा, ये बात क्लियर हुआ आप लोग का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगेन तीन बार, फिर से तीन नहीं 4 बार। सर गुड्स कैसे जाएगा? रास्ते से जा सकता है, हाँ या ना? जा सकता है, ट्रैक से भाग सकता है, रेलवे ट्रैक से। गुड्स नहीं भागेगा, अपने ट्रेन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। उड़ के जा सकता है, तैर के जा सकता है। विशाखापट्टनम या पोर्ट जो है हम लोग का कंट्री का, या बॉम्बे का जो पोर्ट है वहाँ पे टाइटैनिक नहीं आता, या किशनपुर पोर्ट में टाइटैनिक नहीं आता। आप लोग वहाँ पे बात सोचे टाइटैनिक जहाज है, तो कौन सा जहाज? तो माल मतलब क्या बोलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला वेसल्स नहीं आते, ठीक है। तो गाइस ये सब ये है जीटीए ओनली फोकसिंग ऑन द रोड। रेलवे के ऊपर नॉट एप्लीकेबल, एयर कार्गो नॉट एप्लीकेबल, और हम लोग का जो शिपिंग है वो भी नॉट एप्लीकेबल, ओनली बाय रोड। तो आज हम लोग क्लास कंक्लूड करते हैं जीटीए सर्विस को क्लासिफाई करके कि व्हाट सर्विस शैल बी फॉलिंग अंडर द जीटीए। सो जीटीए सर्विस के अंदर आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन कुरियर बाय रोड। समझ में आया? बड़ा मान लिया क्या? नहीं सर, किसी को भेजना बोला, फॉन्स एंड पेटल है, उसमें से कुरियर भी करने का दरकार नहीं, ऐप्स ही चल रहा है। और सब बहुत सारा जगह जुगाड़ लग गई मार्केट में, ठीक है। पता है ना आप लोगों को फंड्स एंड पेटल बोल के एक ऐप आता है, वो इंटरनेशनल कुरियर भी करता है। यूएस में किसी को गिफ्ट भेजना है तो वो भी कर देगा, आपको भी इसको पता है भेजना। हाँ, प्राइस बहुत ही फंड्स एंड पेटल, F&P कुछ ऐसा ऐप का नाम होता है। कुछ भी भेजना सब भेज देगा वो लोग, फूल केक जो भी आपको चाहिए। तो मार्केट में सब ऐप भी बहुत पॉपुलर है आजकल, ठीक है। प्लानिंग बातें बनाना सुन लो पहले, कुछ आइडिया वाइडिया है नहीं, अब सुनने के बाद प्लानिंग बनाना है ना तुम लोगों को। सुन लो पहले कैसा होता है, ठीक है। चार्जेस बहुत हाई है उसका, केक का 500 का तो 500 डिलीवरी के मिलेगा, तो 1000 का होगा। तो थोड़ा सा देख ले, उससे से और सिंपल हम जाके लेके आते हैं। तो गाइस जीटीए को क्लासिफाई समझ में है आप लोग का। तो जीटीए के अंदर क्या क्या आएगा? पहले बात तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की पैसेंजर, गुड्स अदर देन कुरियर बोल देना, बिकॉज़ कुरियर भी गुड्स ही जाता है। मुझे किसी को लैपटॉप सेंड करना है अभी
भेजना है किसी को, तो मैं क्या करूँ, कुरियर ही कर दूंगा, तो कुरियर लेके चला जाएगा। अमेज़न क्या करता है, अपना कुरियर ही तो करता है। फ्लिपकार्ट क्या करता है, कुरियर ही तो करता है ना आप लोग का। तो दे विल सेंड बाय कुरियर, बट दैट इज नॉट अंडर जीटीए। जीटीए कुरियर को छोड़ के जो नॉर्मल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मतलब ट्रक वाला का बात होता है, ठीक है। बाय रोड, यस सर, बाय रोड एयर होगा तो जीटीए नहीं है, रेलवे भी जीटीए के अंदर नहीं आएगा, वेसल सर्विस भी जीटीए के अंदर नहीं आएगा। बाय रोड ओनली, गुड्स जाएगा रास्ते से जाएगा, ठीक है। अदर देन कुरियर, प्लीज ऑलवेज बोल देना अदर देन कुरियर, बिकॉज़ कुरियर भी आज एक मतलब मोड हो चुका है, कुरियर सर्विस भी एक मोड हो चुका है, वो गुड्स ही लेके जाएगा। पैकर्स और मूवर, वो भी तो गुड्स ही लेके जाएगा ना, आपको बिल्डिंग शिफ्ट करना है तो पैकर्स और मूवर को बोला सारा सामान वही पैक करके लेके जाएगा। तो गाइस दे आर नॉट अंडर जीटीए, जीटीए के अंदर ओनली वही आएगा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा, बाय रोड करेगा, अदर देन कुरियर। अब इसके अंदर क्या है कहानी वही हम लोग को सीखना है, बिकॉज़ हर एक बिजनेस में आपको ट्रांसपोर्टेशन का बिल तो पक्का मिलेगा नहीं। सो यू शुड अंडरस्टैंड उसको एंट्री कैसे करते हैं और उसको पैसे आने कैसे, कि फॉरवर्ड चार्ज की रिवर्स चार्ज। क्लियर? तो आप लोग को रिवर्स चार्ज के इंट्रो पार्ट क्लियर हुआ, एवरीवन मैडम इट्स क्लियर? टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स इट्स अ क्लियर? रिवर्स चार्ज के इंट्रो पार्ट प्लीज से यस, नो, नो कमेंट्स, यस व्हाटएवर, जो भी आप समझ रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, एक बार देख लीजिएगा। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम लोग आज से वो कंप्लीट करेंगे जो वादा आप लोग से किए थे फरवरी मंथ से, ये फुल ऑन प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, विल स्टार्ट। क्या करना है, वही टैली में एंट्रीज करना है, एवरीथिंग। सर आप इन द मीनवाइल YouTube पे जाके टैली का हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्रिएट लीडर टैग में टाइप करो, बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएगा, आप एक बार फॉलो करिए, जस्ट फॉलो करिए, बाकी मैं समझ लूंगा, ठीक है। याद रहेगा, टास्क आप लोग को नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, भयंकर टास्क, उसमें टाइम बाउंडिंग है, ऐसा नहीं कि दूंगा बोलो करो, नथिंग लाइक दैट। टाइम बाउंडिंग है, 1 घंटे के अंदर करना है, ओके। बिकॉज़ मुझे आप लोग को टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। नहीं सर उतना भी शॉर्ट नहीं दे